بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوستو، صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ ناظرین، میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچے رات کو سوتے نہیں تو شہد چٹائیں۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ناظرین، رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوگی۔ جب بھی گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچ ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ نظریں بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے
تو सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, निहार मुंह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर आपको लैकोरिया का मसला है तो ज्यादा से ज्यादा टमाटर खा लिया करें। अंगूठे पर तेल लगाया करो, नजर तेज होगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लिया करो, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होता है। खालस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर लीमू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुंह लीमू चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पांव सुन्न नहीं होंगे। अंधेरे में सुरमा लगाने से नजर तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, वो गन्ने का जूस जरूर पिया करें। जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। मैदे की सफाई करनी है तो बत्तख का सूप पियो। जो अफराद कम उम्री में शादी करते हैं, उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोजाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें। आपकी जिल्द नरमो मुलायम और अच्छी रहती है। नहाने के फौरी बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बेनाई के कम होने का खदशा है। जो औरत चलगोजे खाती है, वो औरत जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज्यादा कड़वी चीजें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पी लिया करो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दे। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात। बच्चा 2 साल का होने लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील न करें। बच्चों को खबरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना जाएं। खास कर ख्याल रखें कि बच्चे का कोई उल्टा नाम ना रखे। खुशबाश बच्चा उदास नजर आए तो वजह जाने। मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करें। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होती। ज़हनी दबाव दिमाग और दिल को कमजोर करता है। गम फेफड़ों को कमजोर करता है। गुस्सा जिगर को कमजोर करता है। अगर आप दुनिया में हमेशा कामयाबी चाहते हैं तो पहले ही आपके अंदर नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला होना चाहिए। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। शाम होते ही 3 बार नमकीन पानी से गरारे करो। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चल फिर कर सबक याद किया जाए तो सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फौरन खत्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। दस्तरख्वान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करें। आखिरी नवाले में सेहत होती है। ज्यादा मैदे की बनी हुई चीजें खाने से पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा तो रोजाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या फत्ताहू की तस्बीह पढ़े और निहायत आजिजी से दुआ करे। जल्द अच्छा सबब बन जाएगा।
ज्यादा नमक खाने से दिल कमजोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलवंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ होता है। खाने के बाद फौरी पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। बटेर का गोश्त खाकर ऊपर से चंद दाने अंजीर के खा लिए जाएं तो समझ जाएं बूढ़े हो जाएंगे मगर ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहां खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शोहर से हमेशा हलाल रिज़्क का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो सदका करते रहना। अगर आप सोते टाइम खराटे लेते हैं तो रात को नमक वाले पानी से गरारे करें। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी सलाहियत दब जाती है। जिसको मार पीट कर कोई चीज सिखाई जाए वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। वालिदैन बच्चों के सामने झगड़ा करते रहे तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। नाजरीन, लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है। खून की शरेयानें खुल जाती हैं। क्या आप जानते हैं नहाने से पहले एक लीमू नहाने वाले पानी में निचोड़ लेने से आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला लो। इसे नीम गर्म करके दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। इससे उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। हाथ पांव सुन हो जाते हैं तो लीमू चाटते रहें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। निहार मुंह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। हाजमा खराब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। नाजरीन, लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। पेट को कम करने के लिए रोजाना 1 अदद लीमू पानी के साथ इस्तेमाल किया करें। एलोवेरा जेल को बालों में लगाने से बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल बढ़ाना चाहते हो तो नारियल का तेल लगाया करें और अच्छे शैम्पू से बाल धोया करें। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खरगोश का गोश्त खाने से फालिज की बीमारी नहीं होती। अनार का अंदरूनी छिलका खाने से मैदा खाना जल्दी हजम करता है। चुकंदर के पत्तों को उबालकर इसके पानी से सर धोने से सर की खुश्की खत्म होने लग जाती है। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी खत्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिए, चर्बी गायब हो जाएगी। बाल गिरते हों और कमजोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा लगाकर धो लें। रोजाना 1 सेब खाने से दिमाग तेज होता है। सेब को छीलकर नमक लगाकर खाने से सर दर्द दूर होता है। सेब को निचोड़कर नमक मिलाकर इसका रस पीने से मतली लगना बंद हो जाती है। हरीर का मुरब्बा खाने से अकल बढ़ती है। जोड़ टांगे हाथी जैसी मजबूत हो जाती हैं। शहद खाने से दिमाग तेज होता है। सौंफ खाने से नजर तेज होती है। रात को खाना कम खाने से मोटापा कम होता है और अच्छा नाश्ता करने से दुबले पतले लोग मोटे होने लगते हैं।
नाजरीन, पुदीने के इस्तेमाल से सर दर्द का खात्मा होता है। ये फेफड़ों के सोजन को दूर करता है और दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। रात को नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लेने से दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है। तेज गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी लग सकती है, जुबान जलने का खतरा होता है और दांत हिलने लग जाते हैं। अगर किसी को जादू टूने का मसला हो तो बेरी के पत्तों को उबाल कर इस पानी से गुस्ल कर लो, जादू का असर खत्म होने लगता है। जो लोग दोपहर को कहवा पीते हैं, इनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाओ, बीमार नहीं होगे। अगर रात को सोते वक्त अक्सर डर लगता है तो या हफीजू या रकीबू की तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। हर दूसरे दिन दलिया खाने से ताकत वाली चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, दही में 2 चम्मच मेथी दाना पीस कर मिलाकर रोजाना खा लो। शुगर 400 से कम होकर 120 तक आते देखी गई है। इंसुलिन की जरूरत कम हो जाती है और जिस्म में तवानाई बहाल हो जाती है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखे। नाजरीन, याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।